Good afternoon. This is the 8th part of lesson first, and in this part I will discuss how you solve the problems related to equivalence relation. This is very important part. In board exam there is a 6-mark weightage for this type of question. So how you show an equivalence relation? First of all, you have to show reflexive. How you show reflexive? You have to take one element, one arbitrary element from the given set, and you have to show every element of set A related to itself. It means A related to A. Then we can say that the relation is a reflexive relation. And for the symmetric, you have to take two arbitrary elements with A and B. If A related to B, this implies B related to A, then we can say that the relation is symmetric relation. And for the transitive, you have to take three arbitrary elements A, B, C. If A related to B and B related to C, then if A related to C, then we can say that the given relation is transitive relation. And if we satisfy, if the given relation is satisfy all the three relations, then we can say that the given equation, the given relation is an equivalence relation. Now we see this example, and by this example we can understand the better way. And this question is very important. Many times this question is asked in the board examination in previous years. So this is important for you also. Let us see. Show that the relation R on a set A. Set A is given 1, 2, 3, 4, 5. Given y R equal to A comma B such that A minus B is given is an equivalence relation. Again, next part is so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 are related to any element of 2, 4. You have to understand this question. This is set A in which you have to find the relation. दो एलिमेंट पेयर में हैं तो उसको हम सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं है कि दोनों में क्या रिलेशन है। दो लोग खड़े हैं, अगर उनमें कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन जानने के पहले रिलेशन डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि जो दोनों लोग खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों में क्या रिलेशन है। तो जब भी क्वेश्चंस देता है तो यहाँ पे ये दिया होता है ऑलरेडी कि दोनों में क्या रिलेशन है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये रिलेटेड तभी होंगे जब इनका डिफरेंस क्या हो, इवन। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन तभी रखेगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा A माइनस बी, दोनों का मॉडुलस डिफरेंस ऑफ A माइनस बी, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस A minus B is even. So this relation is given and we have to show this is an equivalence relation. After then we show the next part. So let us see. If you want to clear pick, you have to find A cross A firstly. But there will be 25 elements and this will be very tedious. So we take an arbitrary element. ये ध्यान देना है आपको कि जब भी ये सेट बड़ा हो, अगर ये 3 का सेट होता तो 9 एलिमेंट आते, पहले हम लोग A क्रॉस A निकाल लेते, उसके बाद देख लेते वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसका डिफरेंस इवन आ रहा है, तो रिलेशन निकल आता और उससे आसानी से आप दिखा सकते थे
कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 और 5 एलिमेंट हैं, 5 5 जा 25 पेयर्स आए। अब फिर उसमें आपको चेक करना होगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टेडियस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं ए, और व्हाट इज ए मे बी 1 मे बी 2 मे बी 3 मे बी 4 मे बी 5, कुछ भी हो सकता है। अब आप चेक करो, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, 4 minus 4 0, 5 minus 5 0. So in simple way you can say e minus a 0, e minus a 0, and you know that 0 is a even number, so we can say that this relation is reflexive. Now for the symmetric you have to take two elements. I take here two elements a and b. अगर हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं जिनका डिफरेंस इवन है, तो अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, a माइनस बी को b माइनस ए कर दें, तब भी तो इवन रहेगा, क्योंकि मॉडुलस की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। सो इफ a माइनस b इज इवन, डेफिनेटली b माइनस a will be also even, and so this relation is symmetric because a related to b, this implies b related to a, so this is symmetric. Now for the transitive we have to take three elements a, b, c. If we suppose a related to b, it means what, a minus b should be even, और a minus b even है तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा, m in the sense what, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, तो जो 1 2 3 है उसके जगह पे हम लोग जनरलाइज m मान ले रहे हैं, where m is any number। अच्छा, जब आप मॉडुलस से यहाँ से हटाओगे तो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू प्लस माइनस 2a। मॉडुलस हटाते ही और साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया है। अब दूसरी बात, दूसरा जो रिलेशन हम लोग लेते हैं b और c में लेते हैं, एक ऑर्डर पेयर ab होगा, दूसरा ऑर्डर पेयर bc होगा। अगर वो ac आ जाएगा तो हम कह देंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इफ b रिलेटेड टू c इट मींस व्हाट, b माइनस c इज इवन, modulus of b minus c is 2n, where n is any integer, and mod अगर हटाओगे आप यहाँ पे प्लस माइनस फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर ले ले रहे हैं n, n is the another any integer. So if we get both two equations 1 and 2, तो आप देखोगे कि 1 और 2 को जब आप लोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और दिस इक्वल टू प्लस माइनस 2n। अब m प्लस n को हम लोग एक दूसरा नंबर सपोज कर लिए हैं b, और b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस c का डिफरेंस प्लस माइनस 2p आ गया। तो अगर मॉड लगा देंगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, हट गया। और अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो निश्चित रूप से क्या होगा, इवन होगा। और जब ये ही कह रहा है कि रिलेशन अगर ऐसा होगा तब जाकर के हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो उससे हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेल्ड 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब आप डिफरेंस करके देखो, 1 minus 1 0, 1 minus 3 minus 2, mod of minus 2 this equal to 2, 1 minus 5 4। मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए होंगे कि अगर हम लोग उसका खुद से खुद में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि इवन होगा। और किसी भी ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर का डिफरेंस एक इवन नंबर होता है, इसलिए सभी के सभी क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वी हैव डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर इज इवन, एंड डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर इज आल्सो इवन। सो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 and 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि अगर 1 3 5 सेट को लेंगे या फिर 2 4 को लेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा, ऑड का डिफरेंस इवन होता है और इवन का डिफरेंस इवन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। बट कह रहे हैं कि 1 3 5 आर नॉट रिलेटेड,
नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। आपको पता है कि अगर ऑड में से इवन को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ऑड नंबर में से इवन नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा, जबकि डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन नहीं होगा तो वो रिलेशन नहीं रखेगा और रिलेटेड नहीं होगा। तो कह रहा है कि इन दोनों के तो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट अगर हम लोग एक ऑड का पेयर ले लेते हैं, ऑड का सेट ले लेते हैं और एक इवन का सेट ले लेते हैं, तो इनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड कभी नहीं होंगे, क्योंकि ऑड नंबर माइनस इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर नॉट इवन नंबर। सो 1 3 5 are not related to any element of 2 4, whenever 1 3 5 are related to each other and 2 4 are also related to each other. This is the complete of this solution of this question. Thank you.